یورپ داخل ہونے کے خواہش مند کن مشکلات سے گزر کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سفر میں چلیے ایک تارک وطن کے ساتھ۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات پر افغان صحافیوں کے خدشات۔ آپ اگر اس جیل روڈ کو ہی دیکھیں جس کے اوپر پہلے اتنے اونچے درخت تھے کہ محکمہ موسمیات کا ڈوم نظر نہیں آتا تھا، اور لاہور سے درختوں کا گھٹتا ہوا سایہ، قدرتی نظام کا تحفظ کیسے ہو؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ ہر سال ایشیا اور افریقہ سے بڑی تعداد میں لوگ یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئے آنے والوں کا کتنا بوجھ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے، اس بوجھ کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس بارے میں یورپ میں بحث پچھلے کچھ سالوں سے خاصی گرم ہے۔ انفیکٹ اس نے یورپ کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل دیا۔ آسٹریا، جرمنی، ڈنمارک، پولینڈ، ہنگری یہ وہ ملک ہیں جہاں پچھلے کچھ سالوں کے دوران تارکین وطن مخالف جذبات میں اضافہ ہوا ہے اور انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں نے الیکشنز میں خاصی کامیابی بھی حاصل کی۔ آج سے یورپی کمیشن اسی معاملے پہ نئے قوانین متعارف کرانے کے لیے مذاکرات کا آغاز کر رہا ہے۔ پاکستان سے بھی ہر سال چونکہ کئی سو نوجوان یورپ پہنچنے کا خواب لے کے نکلتے ہیں، تو آج کے شو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تارکین وطن کن راستوں سے کن مشکلات سے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آسان نہیں اور منزل تک پہنچنا یقینی نہیں۔ اسائلم یا پناہ کی درخواست کے ساتھ یورپ آنے والوں سے متعلق قوانین میں تبدیلی پہ بات چیت ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب براعظم میں تارکین وطن کا سب سے بڑا اور گنجان آباد کیمپ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یونان کے جزیرے لیسبوس پر واقع موریا کیمپ 2015 میں بنایا گیا تھا، جب یورپ ایک بدترین انسانی بحران کا سامنا کر رہا تھا۔ تب شام، افغانستان، پاکستان اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 10 لاکھ افراد اسائلم یا پناہ کی تلاش میں یورپ کی سرحدوں پر کھڑے تھے۔ موریا کیمپ 3000 سے بھی کم افراد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جب 2 ہفتے قبل آگ لگی تو تقریباً 13,000 افراد کھلے آسمان تلے شب و روز گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی، لوگوں نے پتھر اٹھائے، ایک دوسرے کو مارے، کچھ افغان اور افریقی لوگوں کی لڑائی ہوئی، بات بڑھتی گئی اور پھر آگ لگ گئی، بہت سے کیمپ جل گئے، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ ہمیں نئے کیمپ میں جانا پڑے گا، ہم وہاں نہیں گئے تو ہماری پناہ کی درخواست مسترد ہو جائے گی۔ یونان کی حکومت نے راتوں رات نیا کیمپ تعمیر کر کے بہت سے لوگوں کو وہاں منتقل کر دیا ہے، مگر سالوں سے موریا کیمپ میں پھنسے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں یونان سے دیگر یورپی ملکوں میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت یونان اور اٹلی وہ 2 ملک ہیں جو ان تارکین وطن کی آمد سے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ڈبلن ریگولیشن، اور اسی کو بدلنے پہ آج سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ایک تارک وطن یورپ کے جس ملک میں سب سے پہلے قدم رکھے اس کو وہیں اسائلم کی درخواست دینی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک تارک وطن کے اسائلم کی درخواست پہ کئی ملکوں میں کام نہ ہو رہا ہو، لیکن اٹلی اور یونان کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان پہ بوجھ بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 2 ملک ہیں جو یورپ میں براستہ پانی داخل ہونے والوں کا عموماً پہلا انٹری پوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ نقشہ دیکھتے ہیں۔ آج تارکین وطن کی اکثریت بحیرہ روم کو عبور کر کے یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے 3 روٹ استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ۔ پاکستان، ایران، افغانستان، عراق اور شام سے تعلق رکھنے والے عموماً مشرقی روٹ استعمال کرتے ہوئے ترکی سے یونان داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سینٹرل روٹ عام طور پہ لیتے ہیں افریقی، جو لیبیا پہنچ کر وہاں سے اٹلی کے جزیرے لیمپڈوسا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی حد تک مراکش سے اسپین کا راستہ جسے مغربی روٹ کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور آبی گزرگاہ جس کا خطرناک سفر بہت سے لوگ کر رہے ہیں وہ ہے انگلش چینل۔ اس کے ذریعے فرانس سے برطانیہ داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برطانیہ نے اس کے پانیوں میں پہرے بڑھا دیے ہیں کیونکہ اس سال اب تک 4000 سے زیادہ افراد انگلش چینل کو کراس کر چکے ہیں۔ راستہ کوئی بھی ہو، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے تارکین وطن کے شب و روز کن مشکلات سے کٹتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی کی ایک جھلک۔ 11 ستمبر 2020 بچوں اور عورتوں سمیت 14 افراد پر مشتمل یہ چھوٹی سی کشتی 7 گھنٹے کا پرخطر سفر طے کر کے فرانس سے برطانیہ کی بندرگاہ ڈوور پہنچی۔ انگلش چینل نامی سمندری راستے پر نکلنے سے پہلے یہ غیر قانونی تارکین خدا اور نارنجی لائف جیکٹس پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ برطانوی سرزمین پر قدم رکھنے والے ان افراد میں 29 سالہ کویتی ولید بھی شامل ہیں، لیکن ان کی کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ہفتے پیچھے جانا ہوگا۔
31 अगस्त 2020 शुमाली फ्रांस का इलाका गांद सिंध रेलवे लाइन के करीब एक जंगल में आरजी खैमे में वलीद इराकी शहरी फलाह के साथ रह रहे हैं, जिनकी 2 बच्चियां हैं। 4 साल कबल फ्रांसीसी हुकाम ने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर केले में गैर कानूनी तारिकीन कैंप को बंद किया तो वो यहाँ जमा होने लगे। यहाँ के मकीन तेजी से तब्दील होते हैं और एक की छोड़ी हुई अशिया यहाँ आने वाले नए अफराद इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये जली हुई देगची जिसे वो गदले पानी में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रिहाइश आरजी है और बरतानिया के समंदरी सफर पर निकलने तक बुनियादी जरूरियात पर खुद को जिंदा रखना ही यहाँ के मकीनों का असल मकसद है। वलीद कुवैत की बदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी कोई शहरियत नहीं। वो यूनान समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से होते हुए फ्रांस पहुँचे और अब बरतानिया के सफर की तैयारी कर रखी है। हम नहीं जानते कि किस दिन हम यहाँ से निकलेंगे, कल, परसों या 1 माह बाद। मैं किसी और मुल्क में 5 दिन से ज्यादा नहीं ठहरा। फलाह की बड़ी बेटी को ज़ियाबीतस है, जिसके इंसुलिन इंजेक्शंस को हासिल करना उनकी रोजमर्रा आजमाइश का हिस्सा है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खैराती तंजीमें इन बेआसरा अफराद के लिए अशियाए खुर्दोनोश फराहम करती हैं। 2015 में जब इराक में दाइश की ताकत बढ़ी तो दीगर हजारों इराकियों की तरह फलाह ने भी जर्मनी का रुख किया। ताहम वहाँ पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद वो फ्रांस पहुँचे और अब बरतानिया जाना चाहते हैं। हम सिर्फ इंसानी सलूक चाहते हैं, हमें भी जीने का हक है, इसीलिए अपने मुल्कों को छोड़ा। आज़ादी से जीना बच्चों का हक है। हम जानते हैं कि ये मौत का सफर है, लेकिन फिर भी जल्द निकलना चाहते हैं। हमारी किस्मत खुदा के हाथ में है। ये अफराद अपनी लाइफ जैकेट्स हमेशा तैयार रखते हैं और रोजाना पुल के पार एक मखसूस जगह पर जमा होकर अपने एजेंट की कॉल का बेचैनी से इंतजार करते हैं, जिन्होंने हर शख्स को 3000 पाउंड के इवज बरतानिया पहुंचाने का वादा कर रखा है। फ्रांस में 1 माह 13 दिन रहने के बाद जब वलीद ने अपने एजेंट को कॉल मिलाई तो आखिरकार उन्हें वो खबर मिली जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे कि अगले रोज उन्हें बरतानिया के सफर पर निकलना होगा। इंशाअल्लाह। अगले रोज कश्ती की बरतानिया रवानगी की इत्ला मिलते ही इस सफर के तमाम खतरात को पसे पुश्त डालकर वलीद ने साहिल की जानिब दौड़ लगा दी। ये मंजर बारहा दोहराया जाता है। बरतानिया में हसीन जिंदगी का ख्वाब हजारों गैर मुल्की तारिकीन को दुनिया के सबसे मसरूफ और खतरनाक समंदरी रास्ते इंग्लिश चैनल से सफर पर मजबूर करता है। वलीद तो बरतानिया पहुँच गए, लेकिन पीछे रह जाने वाले उनके साथी फलाह अपनी 2 बेटियों के साथ किसी और दिन इसी पुरखतर सफर पर निकलने की कोशिश करेंगे। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। यूरोपीय कमीशन के मुज़ाकरात में ये तय करने की कोशिश की जाएगी कि वो मुल्क जो तारिकीन वतन की मुस्तकिल आमद के बोझ तले दब रहे हैं, इत्तेहाद के दीगर रुकन उनकी किस हद तक और कैसे मदद कर सकते हैं। वैसे यूरोप आने वालों की तादाद में मुस्तकिल कमी तो आ रही है। 2015 में तकरीबन 10 लाख लोग यूरोप के दरवाजे पर खड़े थे, अब ये तादाद तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। लेकिन इस मामले पर यूरोपीय मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात कम कराना ये अब भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बेहतर जिंदगी की तलाश लोगों को यूरोप की तरफ खींचती है, लेकिन वो खुशनसीब जो खतरनाक मौजों की नज़र होने से बच जाते हैं, उनकी मुश्किलात भी ख़त्म नहीं होती। उन्हें कई माह बल्कि कई साल कैंपों में बहुत बुरे हाल में रहना पड़ता है। तो आप या आपके किसी अजीज़ ने अगर ये सफ़र कभी किया है तो हम आपकी कहानी ज़रूर जानना चाहेंगे। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में स्कूलों के लिए जो यकसा कौमी निसाब तैयार हो रहा है, उस पर क्या तनकीद की जा रही है और उसका जवाब ये हम हाल ही में आपके लिए लेके आए थे। आज बात करते हैं अमेरिका की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो स्कूलों में ऐसी तालीम चाहते हैं जो वतन से मोहब्बत पैदा करे। उनका कहना है कि बाएं बाजू के इंतहा पसंद नज़रियात अमेरिका को एक नस्ल परस्त मुल्क बना के पेश कर रहे हैं और वो बच्चों को ऐसी सोच से बचाना चाहते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले नस्ली मसावात की बहस खासी गर्म है, तो ऐसे में सदर के इन बयानात को कैसे देखा जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में पाई जाने वाली मौजूदा समाजी बेचैनी की जड़ मुल्क के क्लासरूम्स हैं। बाएं बाजू की जानिब से हंगामा आराई और तशद्दुद हमारे स्कूलों में अशरों से जारी बाएं बाजू के नजरियात के प्रचार का नतीजा है।
इस मुतालबे के जवाब में एक अमरीकी तारीख के असबाक में मुल्क के निज़ाम में मौजूदा नस्ल परस्ती और अमरीका के शुरू के दिनों में गुलामों की मुशक्कत पर इन्हिसार से मुतालिक तबादला ख्याल को भी शामिल किया जाए। सदर ट्रंप का कहना है कि स्कूल्स तलबा के जहनों में ये बात डालते हैं कि अमरीका एक जालिम और नस्ल परस्त कौम है, जिससे वो अपनी तारीख से शर्मिंदा होते हैं और इसे बच्चों के साथ बदसलूकी की एक शक्ल करार देते हैं। हर मसले को नस्ल परस्ती की ऐनक से देखकर वो एक नए तर्ज की अलहदगी पसंदी जारी रखना चाहते हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगरचे तारीख की तालीम के लिए कौमी सतह पर गाइडलाइंस मौजूद हैं, स्कूलों के निसाब का तयन रियासतें करती हैं, फिर भी सदर ट्रंप बकौल उनके चाहते हैं कि स्कूलों में मुहब्बे वतन तालीम को बहाल किया जाए। ये बिल्कुल मज़ाक का खेज बात है कि हिब्बुल वतनी पढ़ाई भी जा सकती है। तालीम में नस्ली इंसाफ के मजमून के उस्ताद रिचर्ड मिलर वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। उनके मुताबिक स्कूलों के निसाब में गुलामी और शहरी हुकूक की तारीख के बारे में दयानतदारी पर मबनी गुफ्तगू भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा नस्ल परस्ती का आज के अमरीकी मुआशरे पर क्या असर पड़ता है, ये भी निसाब का हिस्सा होना चाहिए। हमें ऐसे निसाब की ज़रूरत है या ऐसे निसाबी मौक़े चाहिए जो सच बयान करें, और हकीकत यह है कि हमें इस मुल्क में नस्ल परस्ती से लड़ने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मुल्क भर में जारी मुजाहिरों की वजह से नवंबर के इंतखाबात के लिए जारी मुहिम में नस्ली इंसाफ एक अहम मामला बन चुका है। सदर ट्रंप ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को नफरत की अलामत करार दे चुके हैं और मुनकिर हैं कि मुल्क में मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती मौजूद है, लेकिन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इस बारे में बहुत मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं। इस मुल्क का असल गुनाह आज भी हमारी कौम को दागदार करता है और बाज़ औक़ात हम इसे नज़रअंदाज करने में कामयाब हो जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हज़ारों दूसरे मसाइल के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहता है। अमरीकी स्कूलों में हुब्बुल वतनी की बहाली के लिए सदर ट्रंप 1776 कमीशन तश्कील देना चाहते हैं। ये इशारा उस साल की जानिब है जब अमरीकी नौआबादियों ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने उन असबाब को तनकीद का निशाना बनाया है जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स के पुलित्ज़र इनाम याफ्ता 1619 प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट में उस तारीख का अहाता किया गया है जब अफ्रीका से पहले गुलामों को अमरीका लाया गया था। इसका मकसद कौमी बयानिए में गुलामी के असरात को मरकजी मकाम देकर मुल्की तारीख की असर नौ तश्कील करना है। पैसी उदाकुस्वारा की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कवरेज करने वाले अफगान सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत उन्हें मुकम्मल मालूमात तक रसाई नहीं दे रही। गनी हुकूमत का वादा है कि वो मुज़ाकरात में शफाफियत बरकरार रखेगी, लेकिन बाज़ अफगान सहाफ़ियों को इस बात का खदशा है कि अगर हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाता है तो हो सकता है कि इससे मुल्क में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त की राह में कुछ रुकावटें भी खड़ी हो जाएं। क्या तालिबान नए दौर के न्यूज़ मीडिया को समझते हैं? क्या सहाफ़ियों और मीडिया को महदूद कर दिया जाएगा? और क्या अफ़गान हुकूमत सहाफ़ती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अफ़गानिस्तान के सहाफ़ियों के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, और इसकी वजह है अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत। सहाफ़ी कहते हैं कि उन्हें उनके सवालात के जवाब नहीं दिए गए। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान के अवाम आज़ादी इजहार के आदी हो चुके हैं और चाहे तालिबान ये बात पसंद करें या नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमें तशवीश इसलिए भी है क्योंकि तालिबान का मीडिया की आज़ादी और ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में तस्वुर तब्दील नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है कि वो मीडिया को महदूद कर दें। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि बातचीत में होता क्या है। माजी में हुकूमत मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सुर्ख लकीर खींच चुकी है और बाज़ औक़ात अपनी ही खींची हुई इस लकीर को वसी कौमी मफाद का जवाब देकर अबूर भी कर चुकी है। तालिबान ने बातचीत के दौरान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवामी सतह पर कुछ नहीं कहा है। कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों को मीडिया के शोबे में काम करने वाली ख़वातीन के साथ तालिबान के सलूक पर तशवीश है। दूसरी पुरउम्मीद है, लेकिन इस जानिब भी इशारा करती हैं कि तालिबान ने ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में अपनी वाज़ेह राय नहीं दी। दोहा में तालिबान के साथ मेरी बातचीत के दौरान उन्होंने इस्लामी तालीमात पर जोर दिया और कहा कि वो ख़वातीन से शरीयत के मुताबिक सलूक करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उनकी तर्ज का इस्लाम ख़वातीन को क्या हुकूक देता है।
अफगानिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम कहती है कि हुकूमत को मुल्क में हासिल की गई मीडिया की आज़ादी का दिफा करना चाहिए। हुकूमत मुल्क में आज़ाद मीडिया और आज़ाद रिपोर्टिंग पर फ़ख्र का इजहार करती है। अगर हुकाम ने इन आज़ादियों को खुद ही नुकसान पहुँचाया तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अपने हरीफों से मुज़ाकरात के लिए मजबूत दलील होगी। हमने कोशिश की कि बातचीत के दौरान ज्यादा सहाफ़ियों को शामिल किया जाए और ये भी कि ज्यादा सहाफ़ियों को कतर लाया जाए। मेज़बान मुल्क और तालिबान दोनों ही ज्यादा से ज्यादा मीडिया की शमूलियत के हक में नहीं हैं, लेकिन अफगान हुकूमत की कोशिशों का शुक्रिया कि मीडिया की ये मौजूदगी मुमकिन हुई और इसे जारी रखा जा रहा है। अफगान हुकूमत का कहना है कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़त की आज़ादी उनकी तरजीह है। हुकूमत ने अमन बातचीत जैसे मामलात पर मालूमात तक रसाई में रुकावट की खबरों की तरदीद की है। समसमा सीरत के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया, हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। लाहौर से दरख्तों का घना साया छट रहा है। माहौलियाती तंजीमों के मुताबिक हर साल 2% से कुछ ज़्यादा सब्ज़ रकबा शहर से ख़त्म हो रहा है। इससे कुदरती तवाज़ुन कैसे मुतासर हो रहा है और क्या नए दरख्त लगाना मसले का हल है, इसी का जायज़ा पेश कर रही हैं समन खान। 1995 में लाहौर का रकबा 54,116 एकड़ था, जो आज तकरीबन 3 गुना बढ़कर 1,48,757 एकड़ तक हो चुका है। शहर जिस तेजी से फैल रहा है, दरख्तों का दायरा इसी तेजी से कम हो रहा है। पीपल, कचनार, गुलिनश्तर, अमलतास और जामुन जैसे मुकामी फलदार और फूलदार दरख्त अब बागात से ज्यादा शहर के वासियों की यादों में रह गए हैं। आप अगर इस जेल रोड को ही देखें, जिसके ऊपर पहले इतने ऊंचे दरख्त थे कि महकमा मौसमियात का डॉम नज़र नहीं आता था, अब उस रोड के ऊपर आपको सेंटर में एक 4 फुट की जगह नज़र आएगी, 3 फुट की, जिसके ऊपर कोई दरख्त नहीं लग सकता, और अगर लगा भी दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करेगा। घने पेड़ों की कमी सिर्फ शहरी महसूस ही नहीं करते, बल्कि शहर की सैटेलाइट तस्वीर भी इसकी गवाही देती हैं। 1990 से लेकर 2017 तक 4 डिफरेंट सैटेलाइट इमेजेस लेके तो उसके एनालिसिस किए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीनरी, वाटर बॉडी, अर्बन एरिया, ट्री कवर और बैरन एरिया। तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके मुताबिक हमारा जो ट्री कवर है, ट्री कवर 1990 से 2017 तक 2.06 जो है वो % स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर जो है डिक्रीज हुआ है। WWF की तहकीकात के मुताबिक लाहौर की सब्ज़ चादर में मुसलसल कमी और बढ़ते हुए तामीराती काम से गर्मी की शिद्दत में तेजी आई है और बहुत से मुकामी परिंदों ने भी लाहौर से मुंह मोड़ लिया है। कई ऐसी बर्ड की स्पीसीज़ थी कि जो लाहौर में बहुत आम नज़र आती थी। इसके अलावा आपको जो और कई इंसेक्ट्स थे, हनी बीज थी, जुगनू था, लेकिन आपको नज़र आना शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल, अब आपको 2 जो स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कौवे और चीलें आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। इसकी वजह से कि उनको तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ थी उनके लिए माहौल साजगार नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक बायो इंडिकेटर था कि आपने किस किस्म की एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर दी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक इस वर्ष मॉनसून के मौसम में शहर में 3,40,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। लाहौर को इसका हुस्न और शिफाफ फिजा वापस लौटाने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी के तहत शहर में 51 छोटे जंगल लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है। माजी में कुछ ऐसा था कि लाहौर शहर की लैंडस्केप पे ज़्यादा फोकस किया गया, जो इसकी खूबसूरती है उसके ऊपर जो ज़्यादा रही, जबकि इसका जो नेचुरल इम्पैक्ट है शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। माजी की हुकूमत में 5 सालों में 1,26,000 दरख्त लगे थे, जो हमारे रिकॉर्ड में हैं। हमने PHA ने 2 सालों में जो 4 सीज़न हमारे बनते हैं, मानसून और बहार के, हमने इस मानसून के इख्तिताम पे हमारे पौधों की तादाद इंशाल्लाह 10,18,000 हो।
کچھ جائزوں کے مطابق لاہور کو ماحولیاتی توازن حاصل کرنے کے لیے 80 لاکھ درختوں کی ضرورت ہے، لیکن ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ نئی شجرکاری کئی سو سال پرانے درختوں کا متبادل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دیسی درختوں کی جگہ پردیسی درخت لگانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق لاہور شہر کو درخت لگانے والے ہاتھ چاہیے اور درخت کاٹنے والوں کو روکنے والے ہاتھ بھی چاہیے۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے شجرکاری کرنا ہوگی اور درخت لگا کر بھولنا نہیں بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھانا ہوگی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ لوگ اسی کے ذریعے خبریں بھی پڑھتے ہیں اور دیگر دلچسپ کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر مواد انگریزی میں ہوتا ہے۔ تو گیتی آرا انیس آج اسلام آباد سے ہمارے لیے لے کے آئی ہیں پینسل، ایک اسمارٹ فون ایپ جو اسی مواد کو اردو میں پیش کرتی ہے۔ یہ ہے پینسل، ایک ایسا پلیٹ فارم جو انگریزی خبریں اردو زبان میں پیش کرتا ہے۔ لانچ کے پہلے مرحلے میں یہ ایپ تقریباً 3 لاکھ صارفین استعمال کر رہے ہیں۔ اردو کے علاوہ یہ ایپ فی الحال سندھی زبان میں بھی کام کر رہی ہے۔ پینسل کے ڈیولپر دانش امجد کہتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان میں موبائل فون کا استعمال بڑھ رہا ہے، مقامی زبانوں میں کانٹینٹ کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ جو نیا یوزر ہے اس کی نیڈز کانٹینٹ کی ہائپر لوکل ہیں۔ اس یوزر کو آگاہی چاہیے کہ آگے پیچھے اس کے کیا رہا ہے، آن دا گو ہے یہ یوزر۔ پروڈکٹ کیا تھا کہ جی آپ کے حساب کی نیوز جو کہ پرسنلائزڈ آپ کی فیڈ پہ نظر آئے گی، آپ کی پسند کی نیوز ٹاپ پہ۔ یہ پروڈکٹ لانچ کرتے ہی بہت زیادہ ہمیں ٹریکشن ملی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 21 کروڑ سے زائد آبادی میں 1 کروڑ سے بھی کم افراد انگریزی زبان پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ احمد ایسے ہی ایک صارف ہیں جو اسمارٹ فون استعمال کرنا تو جانتے ہیں مگر انگریزی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ مقامی زبان میں مواد ڈھونڈتے ہوئے اس ایپ تک پہنچے۔ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، کوئی چیز سرچ کرنا چاہیں، ادھر ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ایک اردو میں ہم لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پینسل کی ٹیم نے کئی تکنیکی چیلنجز کا بھی سامنا کیا۔ پینسل خبروں کا لائسنس شدہ مواد انگریزی زبان کی مقامی ویب سائٹ سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی ٹیم کا کہنا ہے کہ علاقائی زبانوں میں ان کا ترجمہ اور معیار برقرار رکھنا آسان نہیں۔ مشکلات تو ہمیں کافی پیش ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے یہی کام انگریزی میں کرنا ہو تو دہائیوں کی تحقیق کی وجہ سے ایسے ٹولز اویلیبل ہیں جن سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اردو میں یہ کام ہمیں سرے سے تقریباً خود ہی کرنا پڑا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ فونٹس معیار کے اویلیبل نہیں ہے تو لوگ اردو پڑھیں گے کیسے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ کی بورڈز اویلیبل نہیں ہے فونز پہ اور کمپیوٹرز پہ تو لوگ لکھیں گے کیسے اردو۔ تو ہم نے ایک آسان ایپ بنانے کے لیے پس منظر میں کافی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کیے جو شاید ہمارے صارفوں کو دکھیں بھی نہ لیکن انہیں محسوس ضرور ہوں گے۔ پینسل کی ٹیم کے مطابق فی الوقت صرف مقامی نیوز ویب سائٹ سے مواد حاصل کیا جا رہا ہے، جبکہ یورپی اور امریکی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اشتراک کا کام آخری مراحل میں ہے۔ پینسل کی ٹیم کی کوشش ہے کہ اگلے چند ماہ میں ان کی ایپ بین الاقوامی مواد کو ملک کی تمام صوبائی زبانوں میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ گیتی آرا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہیں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام میں۔ آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی ہم آپ کے لیے موجود ہیں۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔